Hello, guys. I hope you all are doing great. My name is Vivek Dharamshi, and I am here to announce and give all the details with respect to the upcoming CA final batches. Yes, मैंने कुछ समय पहले CA final batches announce करी है for two subjects, FR and AFM subject. इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूं कि ये बैचेस किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, क्या रहेगा इनका ड्यूरेशन, क्या रहेगा टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग. But before I come straight to the point, I would also like to share some of the achievements. Today I'm very proud to state that today I or VD Education is a synonym for a coaching institute which provides all details, all help required, be it with respect to video lectures, be it with respect to various question banks, be it with respect to test series, for all the professional courses in the arena in the field of commerce and finance. I am proud to also state that we have already completed 2 batches of CFA and 3 batches of CAIA in an online mode. ये विजन मैंने 24 months पहले देखा था कि even though CA course is always the first choice of any student, but there are many students who are exploring, who are interested in other प्रोफेशनल फाइनेंस कोर्सेस. और 2 साल पहले आई हैड थॉट कि आई शुड ऑल्सो एंटर इनटू दिस बिकॉज फाइनेंस इज माय कोर, फाइनेंस इज माय core subject, and I really love teaching any subject, any course relating to finance subject, and therefore we started a preparation 2 years back, and today we have, जैसे मैंने बताया, we have completed 2 batches of CFA and 3 batches of CAIA. In the next 3 to 4 months, I will also be ready with first level or part 1 exam of these 3 courses, that is FRM, ACCA and USCMA course, right? Hopefully next 3 months may the whole content, the whole video lectures and everything should be ready. So this is something that I also wanted to share with you. Now coming to the CA final batches, which is AFM and FR subject, मैं पहले बता दूं ये जो batches हैं ये कैसे चलेगी, what will be the timeline. So सबसे पहले if you see here 20th of January 2025 we will start with AFM subject, yes, Advanced Financial Management. 120 to 130 days का ये batch है, and this batch will get over by 30th of June. अब ये जनवरी में शुरू करना और जून में रुकना, और अगर आप देख पा रहे हैं FR का बैच we will start from 15th of December, and again there's batches of 120 to 130 days and will get over by 15th of April 2026. अब अगर आप देखेंगे कि सर ऐसे बीच में गैप क्यों और क्या, तो मैंने बहुत बार बहुत सारे बच्चों को कहा है. मैंने जब CA फाइनल की बैच एक 20 डेज पहले अनाउंस की थी, post that only there were a lot of inquiries and there are a lot of people who had approached me stating कि sir we are there for the batch, just give us all the details when it will start and so forth. I just want to clearly state, and I hope you also understand, कि if there are 12 months in a calendar year, Jan to December, ये जो जून पोस्ट जून से लेकर एक अक्टूबर नवंबर वाला पीरियड जो होता है ना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है. बच्चे ये समय में स्टडी नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ऑब्वियस ऑफिस प्रेशर्स. एक जैसे हम कहते हैं CA का सीजन होता है, रिटर्न फाइलिंग्स होते हैं, बहुत सारे ड्यू डेट्स होते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर भी, अपने इंटर्नशिप्स पर भी फोकस करे, बिकॉज ये एक इतना पीक पीरियड है जहाँ पर आपको सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है. यहाँ पर ऑफिस में जाने का, ऑफिस से निकलने का इन टाइम आउट टाइम कोई फिक्स नहीं होता. तो ये वाला जो पीरियड होता है विच इज पोस्ट जून एंड समवेयर अराउंड अक्टूबर एंड नवंबर मिड तक, थोड़ा सा बहुत बिजी स्केड्यूल होता है. प्लस ये ऐसा पीरियड है जहाँ पे हमारे भारत में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं, लाइन में शुरू होता है एक के बाद एक फेस्टिवल्स. देयर इज मानसून सीजन, देयर इज फेस्टिवल्स, देयर इज पीक सीजन. तो मैं पर्सनली, मेरे एक्सपीरियंस से, ये जो पीरियड होता है इसमें पढ़ाई इज ऑलवेज नॉट अ फर्स्ट प्रायोरिटी.
जो स्वीट पीरियड है पढ़ाई का, दैट इज समवेयर अराउंड नवंबर से हम शुरू करें, एंड देन जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून. दिस इज समथिंग दैट यू कैन मैनेज. यहां पर पढ़ाई के लिए आप टाइम निकाल सकते हो. आपके प्रिंसिपल भी आपको जितना हो सके उतना हेल्प करेंगे. इसमें आप इतने बिजी नहीं रहेंगे जितने आप ये जून टू अक्टूबर वाले पीरियड में रहोगे. And that is why what we have decided is that initially we will start with AFM subject, will get completed by June. Post that there will be somewhere around July, August, September, October, ये period है November, ये period हम लोग बैचेस नहीं लेंगे, बिकॉज बहुत बार ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट को अपनी इंटर्नशिप के लिए जल्दी जाना पड़े, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर्स, एंड वो अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए. And post that again we will start from 15th of December with FR subject. तो अगर आप देखेंगे दो सब्जेक्ट मेरे हाथ में है, AFM एंड FR. ग्रुप 1 में एक और एक सब्जेक्ट है ऑडिट. जब हमारा AFM और FR सब्जेक्ट चल रहा होगा तभी मैं ऑडिट के लिए भी आपको गाइड करूंगा. इवन दो आई डू नॉट टीच ऑडिट, बट देन विच फैकल्टी टू गो फॉर, कैसे करना चाहिए, कैसे टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, we will provide all the guidance that is required. So आप ये समझ के चलिए CA फाइनल का जो ग्रुप 1 है ये पूरी तरह से is in my hands. एक बार 15th अप्रैल कंप्लीट हो जाए, FR का बैच कंप्लीट हो जाए, पोस्ट दैट आप अपना ग्रुप 2 जो कि है DT, IDT और जो ऑल सब्जेक्ट्स का मिक्स भेलपुरी सब्जेक्ट है, यस, वो यू कैन स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट एज वेल. आई होप आपको ये स्केड्यूल से ये समझता है. अगर आपका अटेम्प्ट, मान के चलिए अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर, ओके, व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट वन बाय वन. अगर आपका अटेम्प्ट मई 2025 में है, ये बैच आपके लिए नहीं है, बिकॉज मई 2025 तक हमारा एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा. अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 2025 के लिए है, then you should only go for AFM subject. नवंबर 2025 तक हमारा सिर्फ AFM सब्जेक्ट ही होगा. अगेन मई 2026 में अगर आपका अटेम्प्ट है तो यू शुड ओनली एनरोल विथ मी फॉर AFM सब्जेक्ट ओनली. इवन दो आपका FR मई एग्जाम्स के पहले हो जाता है, बट दैट आई डू नॉट वांट कि आप इतने एंड तक आपका सब्जेक्ट चलता रहे, आपकी कोचिंग चलती रहे. देन यू शुड एनरोल फॉर FR. कोई दूसरा ऑप्शन आप देखिए, बट डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मी. अगर आपका नवंबर 26 एंड इसके आगे अटेम्प्ट है तो स्पेसिफिकली दिस बैचेस फॉर दो स्टूडेंट्स नवंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स. सो आइडियली इट्स लाइक 2027 एंड आगे. नवंबर 2026 एंड ऑनवर्ड्स जिसका भी CA फाइनल का अटेम्प्ट है वो बैच इनके लिए है. अच्छा, बहुत बार ऐसा भी एक मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि सर अभी तो वी हैव जस्ट एंटर्ड 2025, अभी कुछ दिनों में हम लोग न्यू ईयर आ जाएगा और हम 2025 शुरू होगा और हमारा अटेम्प्ट 2027 में है, क्या ये बहुत जल्दी हो जाएगा? मुझे तो समझ ही नहीं रहा कि कैसे जल्दी होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड देयर आर 6 सब्जेक्ट्स एंड आपको मालूम है सेल्फ पेस्ड 4 सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए भी बड़ी पढ़ना पड़ता है. टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं. अगर आपका 2027 में भी अटेम्प्ट है तो आप ये पकड़ के चलिए कि 2027 का जो आखिरी के 3 महीने हैं, फेब, मार्च, अप्रैल या जैन, फेब, मार्च, हम वो तो नहीं पकड़ेंगे, बिकॉज वो पीरियड में आपका रिवीजन चलेगा, वो पीरियड में आपके टेस्ट सीरीज चलेंगे. So in short 2025 के 12 months and 2026 के 12 months, आपके पास 24 months हैं. इन 24 months में आप देख लीजिए 2025 में 3 से 4 महीने हेक्टिक आपका ऑडिट, आपका पीक सीजन चलेगा आर्टिकलशिप का, एंड द सेम एज 2026 में आपके 3 से 4 महीने चले जाएंगे. तो 24 मंथ से 8 महीने तो चले गए, आपके पास बचते हैं 16 मंथ्स, और 16 मंथ्स में आपको 6 सब्जेक्ट्स फाइनल के और 4 सब्जेक्ट्स SPOM कंप्लीट करना है. और ये बड़ी कोई CA इंटर तो है नहीं कि सुबह आ गए और आपने 6-6, 7-7 घंटे अपनी क्लासेस करी और सारी चीजें कंप्लीट कर ली. आपको इंटर्नशिप के साथ हैंडल करना है, तो इतना कैजुअली मत लीजिए.
जिसका attempt 2027 November 2026 and 27, and this is an apt time to start. When we will be doing our batches, I will also be guiding you on SPOM subjects, कौन से देने चाहिए, कैसे देने चाहिए, कैसे उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, कहाँ से करना चाहिए. So number one, that is something that I'll provide. The biggest advantage is that everything is offline. अब मैंने more or less अपनी सिटी में ऑलमोस्ट सारे ही बच्चों को सीए इंटर पढ़ाया है. वी आर नोन फॉर सीए इंटर एंड फाइनल. आप में से कितने सारे लोग हैं जिनको पता है कि आपने ऑनलाइन किया एंड देन यू केम यहां पर, कि ऑनलाइन में कितना समझता है, क्या समझता है. ऑफलाइन में जब हम सब साथ होते हैं, देयर इज अ बैच ऑफ 70-80 स्टूडेंट्स, एक कंपटीशन डेवलप होता है, एक स्पीड बनता है. किसी एक के भी डाउट से दो लोगों का कंसेप्ट क्लियर होता है. तो offline batch is the main USP of the CA final subjects that I'm announcing. This is something that is number one. SPOM के लिए guidance, that is something that I've already stated. Tests, AFM के लिए we have designed 12 chapter wise tests plus 2 prelims, and FR के लिए भी we have divided the whole subject into 12 chapter wise tests and 2 prelims. So there will be 14 tests each of AFM and FR. I have also planned something for audit as a subject. जो AFM और FR के बीच में जो 3 से 4 महीने का जो गैप है, उसमें ऑडिट को कैसे फिट इन करना है. क्योंकि जब आपका ऑफलाइन वो में कुछ क्लासेस नहीं रहेगा, बट एक आपको हैबिट लग गया होगा मॉर्निंग में 2 घंटा पढ़ने का, तो उसमें ऑडिट में कैसे पढ़ना है, ऑडिट में वीकली टेस्ट हम कैसे स्केड्यूल करेंगे, ये सारी चीजें जब बैच शुरू होगी हम आपको तब बताएंगे. तो ये समझ के चलिए कि आपका जो ग्रुप 1 है एज सच पूरी तरह से क्लास में कवर हो जाएगा. राइट. सो ऑफलाइन है, टेस्ट है. फॉर FR एंड AFM वी विल कवर स्टडी मटेरियल, RTP, पास्ट पेपर्स एंड मॉक. ये सारी चीजें हम लोग जो बुकलेट प्रोवाइड करेंगे उसमें रहती है. इसके अलावा देयर विल बी ऑल्सो स्पेसिफिक बुकलेट डेडिकेटेड फॉर थियरी. और मोरलेस बहुत सारे अपनी सिटी में इंटर के बच्चे हैं जिनको मैंने सिखाया है, और उन सबको पता है कि हम लोग एक फॉर्मूला बुकलेट बनाते हैं 100 पेजर की, भाई सारे फॉर्मूलाज की थिंग्स एक जगह पे होनी चाहिए. ऐसी बुकलेट अब हमने ही बना ली है. सो फॉर्मूला बुकलेट भी is something that I will provide. So we will provide all the study material, all the questions will be covered, everything will be in an offline mode, जिससे टेस्ट conceptual clarity बढ़ती है. और सबसे important है डिसिप्लिन आता है. वरना आपको पता है जिन लोगों का आर्टिकलशिप शुरू हो गया है and they are already done with 3 months, 4 months, 5 months, 6 months of your articleship and have not started anything seriously, right? So this is something that we intend to solve. कि इंटर में अगर किसी का 1-2 अटेम्प्ट लगा है, टाइम चला गया है, नाउ दिस इज द टाइम टू कवर एवरीथिंग अप, क्लियर एवरीथिंग इन वन स्ट्रोक. राइट. टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूं, मंडे टू फ्राइडे 7:30 AM to 9:45 रहेगा. सो इट विल बी अ मॉर्निंग बैच एंड पोस्ट 9:45 एवरीबडी कैन हैव देयर छोटा मोटा टिफिन एंड देन गो टू देयर ऑफिसेस. Saturday is completely reserved for a weekly test that I'm supposed to take. तो मैंने जैसे बताया पहले 12 चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, दैट इज रिजर्व फॉर दैट. एंड संडे देयर विल बी 9 AM to 12 PM और महा एपिसोड लेक्चर. सबको ही पता है, वी जो भी मुझसे सीखे हैं 7 days a week अपना क्लास रहता है, तो वो तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ. 9 to 12 महा एपिसोड भी रहेगा ही रहेगा. करेक्ट. तो दिस इज समथिंग दैट विल गो फॉर मॉर्निंग का बैच, इसीलिए बिकॉज मॉर्निंग में एक बार बैच कंप्लीट हो गया, फिर ऑफिस में आपको अगर कुछ काम है, आप कहीं अटक जाते हो, नहीं निकल पाते हो, तो आपका कुछ मिस नहीं होता है. मॉर्निंग में एक बार बैच कंप्लीट हो गया, यू आर सॉर्टेड. अच्छा, ऑल द लेक्चर्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन अ डेली बेसिस. सो इन केस कभी इस दौरान आपको आपके प्रिंसिपल कहीं पर भेजते हैं कुछ काम से और आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तो वो लेक्चर जो है आपको आपके ईमेल पर लिंक के द्वारा मिल जाएगा. तो आपका वहां पर भी इन केस अगर कभी कुछ मिस हो जाता है तो दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. ईच एंड एवरी लेक्चर विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड.
right? So this is something that I wanted to convey. The only thing that I want to state is you can register yourself by just texting on these numbers. आपको आपका नाम, mobile number, email ID, and you have to just state enrolling for batch, CA final batch that is supposed to start in 2025. There is a some space constant, so we will restrict ourselves to what 55 to 60 students, even though there have already been enrollments, something about 22 students have already enrolled for batch AFM batch that is supposed to start in January. So 55 to 60 students का batch रहेगा, and this is what we will be doing. तो बहुत सारे लोग इस वीडियो का वेट कर रहे थे कब से, और मैं आपको मैंने अब सारी डिटेल्स दे दी है, आपके साथ मैंने सारा शेयर भी कर दिया है. अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है प्लीज़ गिव मी अ कॉल and I'll be more than happy to help you, right? So that's it. Meet you on 20th of January. We'll start with AFM subject. Thank you very much. Bye-bye.